Hello students, this is my first video on data visualization using PyPlot. This is chapter 2 of your book. Now students, in this chapter, I will explain you what is data and what is its role and why we need this data visualization using PyPlot. What we will be doing through PyPlot. Students, ये हम सबको पता है that data plays a very important role in our lives, whether it is your routine life or it is your school life or your business life. So wherever you are, data plays a very important role. And if we want to know about data and clearly understand the data, then it should be represented in the graphical form because that is more easier to understand and analyze. Let's understand this with the help of this quote. A picture is worth 1,000 words. So as it is clear with this statement only that कि अगर हम कोई डाटा represent करें with the help of picture, then it is more clear in place of words. Means अगर हम डाटा लिखते हैं तो उस डाटा को हम अगर डायरेक्टली समझेंगे then it is not clear, but if that same data is represented with the help of a picture, then it would be more effective and more clear to understand, right? Because we all know that images or visuals are a powerful form of communication. We often use them to understand a situation better or to condense piece of information into a graphical representation. Because visuals जो होते हैं, visuals means that what we can see, right? So that is more effective and easy to analyze and absorb. Like एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जब भी हम कोई मूवी देख कर आते हैं तो वो मूवी हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में काफ़ी डेज तक लास्ट करती है. वाई? बिकॉज इट हैज़ विजुअल इफेक्ट्स, राइट? तो ये विजुअल्स थे, ग्राफिक्स थे उसमें, तो दोज लास्ट इन आवर माइंड फॉर मेनी डेज, राइट? So that is why if the data is represented with the help of graphics, then it is more easy to understand plus analyze. So this is the first step for any kind of data analysis work. So whatever work is there in the businesses, there is a data analysis process which has to be done. For data analysis, अगर हम उस डाटा एनालिसिस को ग्राफ्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, मैप्स के फॉर्म में करते हैं, देन इट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड. आपने देखा होगा जब भी ये मैच आते हैं, क्रिकेट मैच आते हैं, तो उसके साथ जो भी मैच का स्कोर होता है, दे यूज टू शो द मैच स्कोर विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट्स और अदर सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स दे यूज टू प्रेजेंट द score of the match because it is clearly understood by all the persons, right? And we can make the comparisons also easily with the help of those charts or graphs, right? So visuals are better called data visualization, which help us to easily understood a complex problem and see certain patterns. And students, we all know that modern age has become very fast and competitive with the pace of the development in all fields of life. जैसे जैसे development increase हो रहा है in all the fields of life, so this age has also become very fast and competitive. ये जो हमारे businesses हैं, पहले क्या होता था कि the business is confined only to the local cities, लेकिन
फिर धीरे धीरे ये बिजनेस हमारे दूसरी सिटीज से मर्ज होते गए, सिटी के बाद ये कंट्रीज में मर्ज हुए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो अब जब ये वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए तो उससे क्या हुआ, हमारे को डाटा की उतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, द नीड फॉर द डाटा इज मोर, सो इट हैज बिकम मोर, राइट। सो थिंग्स तो इजी हो गई, मीन्स जब हमारा डाटा बिजनेस स्प्रेड हो गया across the world, so things become easier, but at the same time it becomes competitive too, and the need for data have increased, डाटा जो है हमारा और बढ़ता गया, क्योंकि अब जब हम ग्लोबल हो गए हैं, वी आर कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो डाटा भी हमारा ऑब्वियसली, डाटा भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। जब पहले सिटीज में कनेक्टेड थे तो दे आर कन्फाइंड टू लेस डाटा, फिर वो मल्टीपल सिटीज से कनेक्ट हुए तो थोड़ा सा डाटा और इंक्रीज हुआ, राइट। फिर उसके बाद जब हम कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड स्पैन हो गया बिजनेस, देन इन दैट केस the data becomes big, right? So in fact data have grown so big that a specific term has been coined which is big data. तो अब क्या हो गया, डाटा बिग हो गया, मीन्स मोर, a large amount of data is there. So the role of data is to empower decision makers to make decisions based on fixed trends and statistical numbers available in the form of data, right? तो हमारी कंपनी में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, मीन्स दे विल एनालाइज द डाटा एंड देन दे कैन मेक डिसीजन, राइट। सो this data visualization helps in identifying patterns, relationships, right, and outliers in the data, and in understanding business problems better and quickly, right, because anything which is presented in visual form is more easier to understand. For this reason, data visualization techniques have gained popularity. So data visualization basically refers to the graphical or visual representation of information and data using visual elements like charts, graphs, maps, etc. तो स्टूडेंट्स आपने 9th और 10th क्लास में चार्ट्स पढ़े हैं, ये सबने पढ़े हुए हैं, जो चार्ट्स के थ्रू हम डाटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट चार्ट्स फॉर एक्सप्लेनिंग the data more clearly, right? So these are the charts, how we can use the charts in various applications, right? जैसे अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको क्रिकेट मैच का, कि उसमें हम स्कोर शो कर सकते हैं with the help of charts, right? So these are the different types of charts which you can read and study, right? Now let's move on to the next part of this chapter. Now Python is an interpreted language with a strong core function basis and a powerful modular aspect which allow us to expand the language with external modules that offer new functionalities. ये हमें पता है कि पाइथन एक लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं विच वी कैन यूज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। जैसे आपने 11th क्लास में मैंने आपको एक मॉड्यूल एक्सप्लेन किया था, एक लाइब्रेरी बताई थी, मैथ लाइब्रेरी। मैथ लाइब्रेरी में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं विच यू कैन यूज, लाइक हम उसमें फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन यूज दोज फंक्शंस with the help of मैथ मॉड्यूल, राइट। तो ये मैथ लाइब्रेरी जो है वी कैन यूज इट फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो इसी तरीके से आपकी जो पाइथन है, पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज आर देयर विच वी कैन यूज for performing different functions, and these modules are often organized in packages, means for every module there is a library which you can import in your program and can perform the respective function by using the
specific functions which are there in that particular library. A package is a structured collection of modules that has the same purpose, right? तो जैसे मैथ लाइब्रेरी है तो मैथ लाइब्रेरी में सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे विच यू कैन यूज फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस और अदर टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस. तो डाटा विजुअलाइजेशन जो है पाइथन में वो भी आप काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. और एक एग्जाम्पल है उसका मैटप्लॉटलिब which we will be using in this chapter. So this matplotlib package can be used in Python scripts, Jupyter Notebook and web application servers. तो जो Python है हम उसमें we can use two exclusive libraries for visualization. तो दो लाइब्रेरी हम यूज कर सकते हैं जो कि है matplotlib and seaborn. Where however we will be using matplotlib as seaborn is beyond the scope of this book and our course also. So we'll not be using seaborn, right? Now let's understand what is matplotlib. अब हम इसकी तरफ चलते हैं. तो मैटप्लॉटलिब क्या है? ये तो मैंने आपको बताया, इट इज़ अ लाइब्रेरी. तो ये आपकी 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है. प्लॉटिंग लाइब्रेरी बेसिकली इन दिस चैप्टर विल बी प्लॉटिंग ग्राफ, चार्ट्स एंड मैप्स, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करानी होगी, राइट? तो मैटप्लॉटलिब क्या है? इट इज़ अ 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी that helps in visualizing figures, right? So through that you can visualize the figures, you can better understand them. So anything, as you already I have explained this thing कि किसी भी डाटा को अगर हम visually present करेंगे then it is more clear. So matplotlib is used in Python as it is a robust, free and easy library for data visualization. So this library is very strong in itself as it have many modules which you can use for plotting the graphs, right? And it is very easy to learn and understood. So data visualization is an important part of business activities, right? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट में. एज ऑर्गेनाइजेशन nowadays collect a huge amount of data, right? ये हमें सबको पता है. अब आप देखो जैसे करंटली कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है हमारे इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो उसमें आपने देखा होगा कि इफ़ यू एनालाइज इट, इफ़ यू वांट टू स्टडी इट, देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ देयर विच यू कैन स्टडी. और हमारे घर पर भी बहुत सारे लोग आते हैं सर्वे करने के लिए. सो दे यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम आवर फैमिली, लाइक हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, right? Is any member is there who is going out on regular basis? So this type of data is there which they used to collect. Okay, then sensors all over the world are collecting climate data, user data through clicks, right? Car data for prediction of steering wheels etc. तो ये सब डाटा ही तो है. तो you can say कि we all revolve around everything, everywhere in all the fields of life data is very important, right? तो अगर वो डाटा clearly present होगा in the visual form, then every company can clearly analyze it, easily analyze it and take the better decisions which are very useful, right? तो अगर हम कोविड-19 की जो मैं अभी सिचुएशन बता रही थी कि हमें कंफर्म केसेस पता हो कि हम उसको एनालाइज कर सकें एंड व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू स्लो द रेट ऑफ कोविड in any country or any country or all over the world, so we can easily control it by studying the data, right? So all this data collected holds key insights for businesses and visualizations make these insights easy to interpret. So data is only as good as it is presented. तो जिस वे में आप उसे प्रेजेंट करोगे, so if it is presented in a better way, then data is easy to understand. अब matplotlib जो है, this is the most popular plotting library for Python. और ये डाटा हम clearly present कर सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, और उन ग्राफ्स को ग्राफ या चार्ट या फिर हम मैप्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड फॉर दैट यू कैन यूज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. इट गिव्स अस कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ फिगर. ये आपका इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग दोनों ही सपोर्ट करता है, एंड कैन सेव इमेजेस इन सेवरल आउटपुट फॉर्मेट्स. तो इन फॉर्मेट्स में जो आपके प्लॉट जब आप ग्राफ कर लोगे तो ये आपका पीएनजी, पीएस और अदर फॉर्मेट में इमेजेस को सेव कर देगा जो आप प्लॉट करोगे. जैसे हमने कोई लाइन चार्ट क्रिएट करा तो उसको हम पीएनजी या पीएस या अदर फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं. दीज आर द पिक्चर फॉर्मेट्स, राइट. अब ये एक टर्म थी इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव. मीन्स हम इसको पाइथन शेल में भी हम इसको रन कर सकते हैं और आप इसको स्क्रिप्ट मोड में भी रन कर सकते हो, राइट. एंड इट वाज ओरिजिनली रिटन बाय जेडी हंटर एंड इज एक्टिवली बीइंग डेवलप्ड. मीन्स इसमें और एडवांस डेवलपमेंट और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर अ BSD स्टाइल लाइसेंस. तो दिस मैटप्लॉटलिब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है. अब ये जो मैटप्लॉटलिब है, इस मैटप्लॉटलिब में एक पाइप्लॉट मॉड्यूल है, राइट. तो इस पाइप्लॉट मॉड्यूल को हम यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग द ग्राफ्स एंड चार्ट्स, राइट. तो ये आपका इसके अंदर काफी सारे वेराइटी ऑफ ग्राफ्स होते हैं और प्लॉट्स होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पावर स्पेक्ट्रा, एरर चार्ट एटसेट्रा. तो इसको हम यूज कर सकते हैं अलोंग विद द नमपाई, जो हमने अभी पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था नमपाई लाइब्रेरी के बारे में, राइट. तो इन दोनों को यूज करके दे प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर मैटलैब. तो ये मैटलैब आपको अभी नहीं पता होगा, हो सकता है. ये मैटप्लॉट जो मैटलैब होता है ना, ये आपके बीटेक के स्टूडेंट्स जो होते हैं, so they use this is a software you can say, and this software is used by the BTech students, right. तो ये लोग इसको यूज करते हैं for creating the graphics, right. तो यहाँ पर जो हमारी मैटप्लॉट है, देखो आप इसमें दोनों में सिमिलैरिटी भी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर मैटप्लॉटलिब है और ये मैटलैब, तो दोनों टर्म सिमिलर लग रही हैं. तो दोनों के थ्रू ही हम ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं. So it is, you can say this matplotlib provides an environment similar to MATLAB, right? So it support interactive and non-interactive plotting and can save images in several output formats, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था. अब हम पाइप्लॉट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज पाइप्लॉट. पाइप्लॉट मैंने आपको अभी एक बताया कि पाइप्लॉट एक इंटरफेस है और यू कैन से इट इज़ अ मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो बहुत सारे ग्राफ्स और प्लॉट्स प्रोवाइड करता है विच वी कैन यूज, राइट, फॉर क्रिएटिंग द ग्राफ्स, राइट. So this is a module of Matplotlib library which contain collection of methods which allow a user to create 2D plots and graphs easily and interactively. अब ये हम कैसे ग्राफ्स क्रिएट करेंगे, कैसे चार्ट्स ड्रॉ करेंगे यूजिंग दिस मॉड्यूल, अभी इस चैप्टर में हम आगे यही स्टडी करने वाले हैं, राइट. तो इसमें ये सब कुछ फिर से रिपीट किया हुआ है, आप ये स्टडी कर सकते हैं. देखो जो मैंने अभी बताया था आपको, पाइप्लॉट इंटरफेस इज जनरली प्रेफर्ड फॉर नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग, जबकि ये इंटरेक्टिव प्लॉटिंग भी सपोर्ट करता है, बट जनरली इट इज प्रेफर्ड फॉर नॉन इंटरेक्टिव. मीन स्क्रिप्ट मोड में हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ओके. दिस चैप्टर इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, ओनली द थिंग इज द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. और 9th-10th में जो चार्ट्स आपने ड्रॉ किए थे, जैसे लाइन चार्ट आपने बनाया था, बार चार्ट आपने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर भी हम वही चार्ट क्रिएट करने वाले हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉट लाइब्रेरी. एंड मैटप्लॉट लिब लाइब्रेरी के अंदर जो पाइप्लॉट इंटरफेस है, जो मॉड्यूल है, उसमें जो मेथड्स डिफाइंड है, उन मेथड्स को हम यूज करके ये चार्ट्स क्रिएट करेंगे, एंड डायरेक्टली थ्रू दोज मेथड्स वी कैन क्रिएट द चार्ट विच इज़ वेरी इजी, ओके. अब प्लॉट होता क्या है, देखो ये जो है ना आपका, ये जो आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से चार्ट्स बन जाते हैं ना, तो ये आपका, ये जो आपका एरिया है ना ये वाला, तो ये प्लॉट हो गया है, ठीक है.
तो प्लॉट क्या हो गया? अ प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग अ डाटा सेट। तो डाटा सेट तो हमारे पास होना चाहिए, जैसे आपने 9th-10th में भी देखा होगा, पहले आपके पास कुछ डाटा होता है, फिर उस डाटा के ऊपर ही आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट? तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मीन्स वॉट एवर द डाटा इज देयर। सपोज हमें सेल्स कंपेयर करनी है 2 months की, तो वो 2 month आपके वेरिएबल्स हो गए। क्लियर? तो अनदर लाइब्रेरी विच हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ्स और चार्ट्स यूजिंग पाईप्लॉट इज numpy। तो numpy आप, जैसे हमें डाटा चाहिए तो numpy में हम क्या करते हैं? एरे क्रिएट करते हैं। तो उस एरे में होता क्या है? तो बेसिकली वो डाटा के लिए ही तो क्रिएट करते हैं हम एरे की, इट स्टोर्स द डाटा। तो यहाँ पर हम वो डाटा numpy लाइब्रेरी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ओके, so it provides a high performance multi-dimensional array and tools for working with these arrays। ये हमें पता ही है, numpy अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर आपको थोड़ा सा numpy पे देखना है कि उसको रिकॉल करना है, तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज राइट ऑन यूट्यूब ऑन द numpy टॉपिक। अब स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्लियर करा कि हमें अगर प्लॉटिंग करनी है, चार्ट्स या ग्राफ्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे? मैटप्लॉटलिब। तो जैसे जब numpy लाइब्रेरी हमने numpy चैप्टर हमने स्टडी किया था, एरे क्रिएट करने थे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले numpy लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करानी है, राइट? सो इन द सेम वे, when you are creating charts, when you are plotting graphs, so you have to install the matplotlib library in your program। इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आपने numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी। तो इन दैट सेम वे वी कैन इंस्टॉल द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे कमांड विंडो, कमांड प्रॉम्प्ट, और उसको रन कर लेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो ये विंडो शो हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर, राइट? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे cd बैकस्लैश। cd बैकस्लैश से क्या होता है कि जो भी डायरेक्टरीज हैं आप उनसे सबसे बाहर आ जाओगे, आप सीधा सी ड्राइव में शिफ्ट कर जाओगे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आ रही है इसमें शो कर रहे हैं कमांड। तो cd बैकस्लैश किया तो आप सीधा सी ड्राइव में चले गए। तो ओवर हेयर यू विल राइट द कमांड pip install matplotlib, राइट? तो ये कमांड आप टाइप करोगे। तो दिस इज द थर्ड स्टेप, ये इंस्टॉल करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके लिए ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट? अदरवाइज इट विल नॉट रन। तो जब ये आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट? अब इंस्टॉलेशन हो गई तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। ओके, ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे हम करेंगे। ये अभी मैंने आपको बताया, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब। और जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसके बाद देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, मीन्स उसके बाद आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं ऑन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ओके, अब इसको मैं एक बार आपको कैसे इंस्टॉल करना है प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, ओके, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, अभी मैंने आपको स्टेप्स में एक्सप्लेन भी किया था। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गई, ठीक है? अब इसको आप cd बैकस्लैश कर दो, तो इससे हम डायरेक्टरी से सबसे बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे pip install matplotlib। क्लियर? ये करके आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सिस्टम में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। बस इस चीज का आपको ध्यान करना है कि इंटरनेट कनेक्शन शुड बी देयर, राइट? अभी मैं एंटर इसलिए प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज नो नीड फॉर रनिंग दिस कमांड, राइट? सो बट दिस वे यू विल इंस्टॉल इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो बाकी टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ऑफ द वीडियो। ओके, तो तब तक आप ये सारा एक बार रिवाइज करें and watch my second video for more on this chapter।
And students, one thing more, whatever confusions you are having in this video, so you can post your confusions in the comment box below this video, right? और आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ अपनी टीचिंग को मैं और इम्प्रूव कर सकूँ. इफ़ एनी पॉइंट यू आर फाइंडिंग कि मैम दिस शुड ऑल्सो बी देयर, राइट? तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट latest notifications. Okay, thank you all.